Hello dear students, how are you all? We are going to start with a new poem of English literature, Grasshopper Green. Okay, so first of all, let me tell you about the poet. Here it is written as anonymous. Means anonymous का means होता है when the poet or the author is not known, कि ये किसने लिखा है हमें पता नहीं होता है. ठीक है. So this poem we are not aware about the name of the poet. Okay. So from the title itself, grasshopper green. Grasshopper क्या होता है आप सबको पता होगा ना. It is one insect. ठीक है. Green color का insect होता है ना, which is mostly found in the parks etc. ठीक है. So उसके बारे में ये poem है. It is very interesting and very interesting poem. ठीक है. So first of all look at this activity. We have to rearrange the letters of these words to find the correct name of the insect. As this poem is related to the insect से related है ना, so इसलिए हमें activity में भी वही दिया हुआ है. So the first one is beetle, moth, butterfly, and then cricket. All right. So let me tell you little bit about this poem first. As I've told you in the beginning also that this is a poem about grasshopper. तो grasshopper दिखता कैसा है आप सबने देखा भी होगा. ठीक है. It is very common insect. See. ठीक है. At the back of this page few pictures are given जहाँ पे हमें दिखाया भी हुआ है ना grasshopper. It is actually green in color. ठीक है. So ये grasshopper की picture है. The poet actually is explaining us about this insect कि उसका daily routine क्या है life में, वो क्या करता है on daily basis. ठीक है. First of all तो वो हमें ये बताता है poet कि जो grasshopper है he is very funny creature और वो बहुत अच्छा खाना खा के he keeps on playing in the different fields. He also describes that he wears the trousers, jacket, cap, etc. Further in the poem, the poet explains about the actions, about the movement of the grasshopper green कि वो कैसे उछल कूद करके चलता है. उसके घर की भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है पोइट इसमें कि उसका घर बहुत ही सुंदर है. और he also talks about the grandmother. ठीक है. grandmother of the grasshopper जो वहाँ पे बैठी है और उसको उड़ते हुए इधर उधर इंजॉय करते हुए देखती है. Also the poet is describing that the grasshopper is calling all the other children to come and enjoy in the beautiful sun. ठीक है. ये सारा हम इस पोएम में पढ़ेंगे. So before starting let's look at the rhyming words of the poem first. Rhyming words, as you are aware, the words which have the similar sound. ठीक है. So here we have the rhyming words like first we have chap, cap. Okay. Fair, wear. Go, low. Sun, fun. Then we have house, mouse. Bright, flight. No, low. Sun, fun. Alright, these are the rhyming words. Okay? They have the same sound but the meanings are different. So let's start now. I'll recite this poem for you and will tell you this explanation also side by side. So see in the beginning, grasshopper green is a comical chap. Comical means funny. ठीक है. He lives on the best of fare. Best of fare means best food. Best food. ठीक है. Bright little trousers, jacket and cap. These are his summer wear. Out in the meadows he loves to go, playing away in the sun. Keep tree high and low, summer's the time for fun. Grasshopper green has a quaint little house, it's under the hedge so bright. Grandmother spider, as still as a mouse, watches him through his flight. Gladly he is calling the children I know, out in the beautiful sun. It's hop tree, skip tree, high and low, summer's the time for fun. ठीक है. So first one, we'll start with the first stanza first.
ग्रासहॉपर ग्रीन इज द कॉमिकल चैप, ही लिव्स ऑन द बेस्ट ऑफ फेयर। सबसे पहले ग्रासहॉपर ग्रीन, वो कह रहा है ग्रासहॉपर जो ग्रीन है, ही इज़ अ वेरी फनी चैप। चैप यहाँ पे बताया गया, इसको ग्रासहॉपर को बोल रहे हैं कि बहुत ही फनी सा इंसेक्ट है, कॉमिकल होता है, बहुत ही फनी। ही लिव्स ऑन द बेस्ट ऑफ फेयर, बेस्ट ऑफ फेयर कि वो अपना बेस्ट फूड खाता है। अब नाउ वी आर अवेयर ग्रासहॉपर ग्रीन कहाँ पे होता है मोस्टली, इट इज़ फाउंड इन द फील्ड्स और इन द पार्क्स, ठीक है, जहाँ पे पत्ते वगैरह होते हैं काफ़ी। और जाहिर सी बात है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फील्ड, वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी और होंगे, स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे, तो वो वही खाता है ग्रासहॉपर ग्रीन। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ही, द पोएट इज सेइंग ही लिव्स ऑन द बेस्ट ऑफ फेयर, कि वो क्या खा के जिंदा रहता है, बेस्ट फूड है वही उसके लिए, ठीक है। ब्राइट लिटिल ट्राउजर्स, जैकेट एंड कैप, दीज आर हिज समर वियर। ना इन दीज टू लाइन्स उसके कपड़े डिस्क्राइब करे हुए हैं कि वो पहनता क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया था ना, पोइम जो है ये एक इमेजिनेटरी पोइम है, एक्चुअल में तो वो ग्रासहॉपर कुछ नहीं पहनता ना, उसके कोई कपड़े थोड़ी ना होते हैं, बिकॉज ये एक इमेजिनेशन है किसी की, पोइट की। तो वो कह रहा है वो क्या पहनता है, ही वियर्स लिटिल ट्राउजर पहने हैं उसने, जैकेट और कैप पहने हैं, और ये उसके गर्मियों के कपड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आउट इन द मिडोज ही लव्स टू गो प्लेइंग अवे इन द सन, कि उसको खेत खलियानों में बाहर खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, बाहर जाना बहुत पसंद है, और वो सूरज की रोशनी में प्लेइंग अवे इन द सन, वहाँ पे वो खेलना चाहता है। इट्स हॉप ट्री स्किप ट्री हाई एंड लो, समर्स द टाइम फॉर फन। ना यहाँ पे इट्स का मतलब वैसे क्या है, इट इज़ एब्रीविएशन इट इज़, ठीक है, इट इज़, बट हम इसको बोलते टाइम हम बोलेंगे इट्स, ऐसे ही समर इज, ठीक है। हॉप ट्री एंड स्किप ट्री, दीज टू वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ द ग्रासहॉपर, कि वो कैसे चल रहा है। हॉप ट्री स्किप ट्री, उछल कूद करके वो चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। समर्स द टाइम फॉर फन, कि समर का टाइम उसके लिए इंजॉय करने का टाइम होता है, फन का टाइम होता है। ग्रासहॉपर ग्रीन हैज़ अ क्वांट लिटिल हाउस। नाउ हियर द वर्ड क्वांट मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी इन अ फनी वे, ठीक है, थोड़ा सा मजाकिया सा लगता है वो चीज़, दिखने में फनी सी लगती है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट्स अंडर द हेज सो ब्राइट। हेज क्या होता है, जो खेतों वगैरह में या पार्क्स में झाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, वो कहते हैं ग्रासहॉपर ग्रीन का एक फ़नी सुंदर सा छोटा सा घर है, और वो कहाँ पे है, झाड़ियों के बीच में है, ठीक है। ग्रैंड मदर स्पाइडर एज स्टिल एज अ माउस। अब किसकी बात कर रहे हैं, ग्रैंड मदर स्पाइडर की, जो उसकी ग्रैंड मदर है, ग्रासहॉपर की वो दादी माँ है। एज स्टिल एज अ माउस, यहाँ पे एक सिमली यूज़ करी हुई है, कंपैरिजन, सिमलीज क्या होती है, कंपैरिजन के लिए यूज़ करा हुआ। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ग्रैंड मदर का, किसके साथ, सॉरी कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, कि वो कितनी शांत है जैसे कि माउस है, ठीक है। सो एज लिटिल एज अ माउस वॉचेस हिम थ्रू हिज फ्लाइट। सो वो उसको देख रही है खेलते हुए, वो आराम से बिल्कुल शांत बैठी हुई है और उसको देख रही है ग्रासहॉपर को थ्रू हिज फ्लाइट, जब वो उड़ रहा है। फ्लाइट मीन्स इंसेक्ट्स उड़ते हैं ना जैसे, तो वही वो बता रही है। यहाँ पे यही पॉइंट बता रहा है कि ग्रैंड मदर बिल्कुल शांत बैठी उसको उड़ते हुए खेलते हुए थ्रू हिज फ्लाइट देख रही है। नेक्स्ट, ग्लैडली ही इज कॉलिंग द चिल्ड्रन आई नो आउट इन द ब्यूटिफुल सन, ठीक है। हैप्पीली वो क्या कर रहा है, सब बच्चों को बुला रहा है, मुझे पता है कि तुम सब भी आओ और सुंदर सनलाइट में, सुंदर ब्यूटीफुल सन में आके खेलो। नाउ इट्स हॉप ट्री स्किप ट्री हाई एंड लो, समर्स द टाइम फॉर फन। फिर से उसकी मूवमेंट बता रहे हैं कि वो उछल कूद करता हुआ ऊपर नीचे जंप करता हुआ वो चल रहा है, बिकॉज समर्स का जो टाइम है वो फन के लिए है। सो यहाँ पे हमारी दीज टू लाइन्स इन द लास्ट स्टैंजा एंड हियर ऑल्सो दीज टू लाइन्स आर रिपीटिंग, ठीक है। So through his imagination, the poet, he is talking about the small insect grasshopper green, and in this poem he is talking about how he looks, क्या वो पहनता है, he wears trousers, jackets, cap etc, best food खाता है, then he loves to play in the fields, ठीक है, and he moves high and low, हॉप ट्री और स्किप ट्री एक्शंस के साथ उछल कूद करता हुआ वो खेल रहा है इधर उधर। एंड द पोइट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग दैट he is having a small little beautiful house, and also the grandmother of the grasshopper, what she is doing, she is
सिटिंग क्वाइटली, शांत बैठी है, एंड शी इज वॉचिंग हिम मूविंग हियर एंड देयर. एंड इन द एंड वी केम टू नो कि जो ग्रास होपर है वो बाकी बच्चों को भी बुलाता है, सब बच्चों को बुला रहा है, दैट कम इन द ब्यूटीफुल सन, बाहर आओ ओपन में एंड लेट्स प्ले. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. नाउ यू कैन recite it again and do the revision also. Thank you children, have a nice day.